Hi, students. So many of them were asking me the explanation of this particular editorial, that is In Pursuit of Happiness. That's the movie. So this editorial is about In Pursuit of Social Justice, and this is related to basically Tamil Nadu. As you can see in the photograph, Chief Minister MK Stalin at the launch of Ilam Thedi Kalvi, Education at the Doorstep scheme in Vilipatam. So that's a fact check. Education at doorsteps किस स्टेट का इनिशिएटिव है? तो आपको पता है कि वो तमिलनाडु का इनिशिएटिव है। अब इस एडिटोरियल को थोड़ा और डिटेल में अगर समझें, ध्यान से समझें, तो हमें ये समझना है कि इस एडिटोरियल में बेसिक इश्यूज़ क्या हैं जो कि ऑथर ने बात की हैं। Now, the basic issues that have been discussed in this particular editorial would also be the issues that is, prevalent countrywide. Because this is related to education, this is related to the post-COVID scenario of the education sector. Now, in this, we can see that first line tells you that it can bridge the pandemic-induced learning gap, which means there is some sort of learning gap which has been created, and this scheme is going to bridge that gap, and also learning outcomes. So this is point number one, that the scheme is targeting. This is point number two, that the scheme is targeting learning outcomes and learning gap. All right. So in this, you can see the three lines mentions that it induces mixed reactions आया है लोगों की तरफ से. Some are very optimistic about the scheme, some of them are not really optimistic. Then you see that the government has launched it is basically appreciating the government as it has recognizing the pandemic induced learning gap among school children. All right, and also the government recognizes that the children are not empowered. Particularly worst hit are the marginalized section children, and they do not have access to the technology driven pedagogical methods as the privileged did. So you can notice the issues that have been mentioned. So pandemic induced, you can say, issue gap is there, a learning gap is there. Also marginalized sections are very much worst affected. Also there is lack of technology access or penetration of digital literacy or digital devices or digital technology in rural areas, in marginalized sections, you can say. So these are the threefold issues that have aggravated the problem, and many who find online teaching convenient and safe fail to recognize this class bias, which means that there is this class biasness that exists, and this also becomes, one of the factors. So those who prefer online teaching fail to acknowledge that online teaching, penetration of online teaching is not conducive to everyone. So this the author also tells you that even if online teaching is there, it is also expensive. Even if online teaching is there, तो नेट का रिचार्ज, मोबाइल का खर्चा, टैब का खर्चा, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस का खर्चा. तो एक मार्जिनलाइज सेक्शन में जहाँ पे एक ही घर है, वहाँ पे एक फैमिली में, पर फैमिली जहाँ पे अगर 6-7 मेंबर्स हैं तो एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है. और वो मार्जिनलाइज सेक्शन बेसिकली इतना नहीं कमाता है कि हर बच्चे को एक इंडिविजुअल फ़ोन दे पाए. तो 4 बच्चे हैं, स्कूल सेम टाइम पे चलता है, तो वो कैसे पढ़ेंगे? अब उसके बाद बात करिए तो ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम है ना. ये बोला गया है कि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो हैं वो इसी वजह से सिस्टम से बाहर चले गए हैं, और लॉकडाउन ने एसेंशुएट किया है एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल सिस्टम. तो यहाँ पे हमारे स्कूल स्ट्रक्चर को क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, स्कूल सिस्टम को बोला जा रहा है कि वो एसिमेट्रिकल नेचर का है, यानी कि वो इक्वल ट्रीट नहीं करता है, या उसके जो भी टीचिंग मेथड्स हैं वो इक्वली एक्सेसिबल नहीं है with regards to privileged and underprivileged section of the society. Now if you notice what are the objectives of the program के अंदर, तो आप देखिएगा incentives provided by the state including free textbooks, free uniform, free bicycles and nutritious midday meal schemes were also unavailable to children of vulnerable sections. So that's issue number one, which means even after the prevalence of certain incentives that the government is providing, leverages, advantages,
Then also, they are still unavailable to the vulnerable sections during the lockdown. Their parents' loss of livelihood compelled these children to drop out of school and resulted in increasing cases of child labor. So this is second issue, that is child labor and loss of income. Loss of income induced child labor. This crisis steadily, which means progressively, slowly began to wreak damage a celebrated political value in Tamil Nadu and an enduring legacy of the Dravidian movement, social justice. Alright? So this crisis, basically author इसको crisis बोलता है और कहता है कि तीसरा इशू जो है सोशल जस्टिस का, वो क्या है, वो प्रेवलेंट नहीं है. Launching this program is the government's attempt to achieve social justice. So you see, this particular line tells you that author is basically appreciating, has lauded the government for the social justice initiative. You can say क्रिटिकल वो होता है जो ऑल फ्रंट पे क्रिटिसाइज करे कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना सारा प्रॉब्लम है उसके बाद भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है. पर लास्ट लाइन में ऑथर बोल देता है धीरे से कि गवर्नमेंट का ये पहला एक अटेम्प्ट है सोशल जस्टिस को अचीव करने का. उसके बाद आप आइए तो आपको दिखाई देगा कि ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है. तो वॉल्टियर्स पार्टिसिपेशन है 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, अभी ट्राई किया जा रहा है स्कीम को. 68,000 और 86,000 वॉल्टियर्स जिसमें कि महिलाएं हैं, तो वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, पार्डन मी. और कहता है कि ये बहुत इंकरेजिंग है क्योंकि ये फियर्स को गिव अवे कर देगा, एले द फियर्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स. दिस कैन ऑल्सो बी द इशू विद रिगार्ड्स टू द स्कीम. तो हमने यहाँ पे ओवरऑल इश्यूज़ की बात करी, अब हम यहाँ पे स्कीम्स के कुछ इश्यूज़ को भी समझते हुए चलेंगे और एंकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम. अदरवाइज मैनी मे बी कंपेयर टू बिकम चाइल्ड लेबर्स ऑफ डोमेस्टिक हेल्प. मतलब ये जो इशू है चाइल्ड लेबर का सेकेंड वाला, इसको ये रेक्टिफाई कर देगा. अलॉटिंग 200 crore ऑफ द प्रोग्राम इज़ अ वेलकम. दीज वर्ड्स slashed education, total education budget in this year. This tells you that the author is appreciating state government over central government. और सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी टोटल एजुकेशन बजट को कमज़ोर कर दिया है और वहाँ पे स्टेट इस तरीके से 200 करोड़ रुपए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ये लगा रहा है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहा है. उसके बाद आप आइए, दो तमिलनाडु इज़ अमंग द मोस्ट लिटरेट स्टेट्स, लर्निंग आउटकम्स को यहाँ पे बोला गया है कॉज ऑफ कंसर्न है. 59% क्लास 5th के स्टूडेंट्स, 89% क्लास 3rd के स्टूडेंट्स अनएबल टू रीड क्लास 2 लेवल टेक्स्ट बुक्स, विच मीन्स दे आर एबल टू रीड एंड राइट but they are unable to comprehend, which means comprehension affects your learning outcome. क्या सीखा आपने. और लिटरेसी बेसिकली आपको बताती है whether you are able to read, write and calculate. बेसिक न्यूमरेसी है ना. बेसिक न्यूमरेसी वाला मिशन कौन सा है, आपको पता होगा, मिशन निपुण. अब आगे आइए तो उसमें यहाँ पे बोलता है एनुअल स्टेट उनका रिपोर्ट, एजुकेशनल रिपोर्ट है जो ये रिवील करता है. लोवेस्ट स्कोर्स अमंग द सदर्न स्टेट्स इन लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स. तो यहाँ से आपको जीके के फैक्ट्स भी मिलेंगे और इसमें बोलता है कि क्रिएटिव पेडागोजिकल इनिशिएटिव्स, क्रिएटिव टीचिंग इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अगर की जाए तो हमारे पास पॉजिटिव आउटकम आएगा. तो इसमें लिटरेसी लेवल्स और लर्निंग आउटकम्स को कंपेयर किया है और बोलता है कि हमें हमारे टीचिंग मेथड को चेंज करना चाहिए. उसके बाद पॉल फीरोज विज़न अगर आप बात करो तो ये जो टर्म है ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना. पर ये पॉल फीरोज विज़न है क्या, पॉल फ्रेरीज विज़न क्या है, तो कमेंडेबल वर्ड सजेस्ट करता है कि ये कुछ पॉजिटिव टोन में बात कर रहा है. टीचर्स एंड सिविक एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स द मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस. उसके बाद फिर आप आइएगा तो मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविस्ट हैं जो कि इस प्रोग्राम को सोशल इंगेजमेंट में टर्न कर देंगे. वॉल्टियर हु हैज़ कंप्लीटेड क्लास 12 बिकम्स एन इंस्ट्रक्टर. ये जो इनहेरेंट पावर डायनेमिक्स चलता है टीचर एंड स्टूडेंट का, रिफ्ट चलता है टीचर एंड स्टूडेंट्स का, उसको ये क्लियर कर देगा. और ये बेसिक पैराग्राफ रिवील करता है, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ रिवील्स दैट द ऑथर इज रियली पॉजिटिव अबाउट द स्कीम से रिलेटेड ऑथर क्या है, बहुत पॉजिटिव है. कहीं कहीं पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो बात है वो उसमें क्रिटिसाइज़ करता है. द यंग वॉलंटियर्स इम्पार्ट लेसन्स क्रिएटिवली बोलता है यहाँ पे, ये शब्द आपको पॉसिबिलिटी बेटर लर्निंग आउटकम इज़ हायर बोल रहा है.
ऑल्सो चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की, सोशल रियलिटी समझने की, इन्हांस करेगा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हेल्प देम टू प्रूव द रीजंस फॉर ऑपरेशन एंड इनजस्टिस. इज एन एग्जाम्पल ऑफ this particular thing is irrelevant, but Paul Firo's conscientization मतलब raising the conscience, raising the individual conscience की बात करिए तो वहाँ पे ये चीज़ आपको लाभदायी साबित होगी, और वही है पॉल फेरीज का विजन. अ फ्यू allies of the DMK say there possibility of communal elements using the program. तो ये इसका एक लूप होल है. ये क्या है? इस स्कीम का एक लूप होल है जिसको कि गवर्नमेंट को कम्युनल एलिमेंट्स ना आ जाएं, इस स्कीम को अपने इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज़ करें और रेग्रेसिव पॉलिटिकल एलिमेंट्स को दूर रखा जाए और स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स इंश्योर किए जाएं. ठीक है. और क्योंकि अननोन लोग हैं तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन को पता नहीं है कि कौन पढ़ाएगा, वॉलंटियर्स हैं बेसिकली, स्कूल प्रेमाइसेस के बाहर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमको स्ट्रॉन्ग एंड क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म चाहिए. वुमेन वॉलंटियर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इस डर को हटा देगा कि गर्ल चाइल्ड की डिग्निटी खतरे में है, और पर फिर भी क्रिटिक्स जो हैं उस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम की सक्सेस को डेंट करने के लिए. तो गर्ल सिक्योरिटी शुड बी इंश्योर्ड. हाउ इट कैन बी ओवरकम? लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वॉलंटियर्स. At the last, author is very positive about the scheme, about the initiative by the state government of Tamil Nadu. Can be said that he is very practical, pragmatic in his approach. As soon as he is identifying a problem, he is also immediately providing a solution to the scheme issues. So let's holistically cover the salient points that we have read so far. In this, we can come to the conclusion that there is a problem in digital learning post COVID-19. So it is basically the class divide between rural, urban, rich and poor. And literacy levels of a state do not reveal the learning outcomes. That's one of the fact. School pedagogy needs to be changed with changing nature of present times. It should be more responsive and adaptive towards digital education and learning. And active participation of fresh graduates, class 12 pass outs and women volunteers. Basically, participation can ensure effective implementation of the scheme at the ground level, or you can also say at the grassroots level. And girl security should be ensured. The scheme entails imparting education. This is one of the major issues, while other issues that we discussed were communal biasness ना होने लगे, ठीक है, और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना होने लगे. ये सारी चीज़ें जो हैं ये ध्यान में रखने वाली हैं इस स्कीम को लेते हुए. क्योंकि गर्ल्स सिक्योरिटी की बात क्यों आती है? इन 3 प्रमुख कारणों की वजह से, पर इसको हम इंश्योर कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वॉलंटियर्स से, जो कि ऑलरेडी कर दिया गया है. तो इसमें भी पॉजिटिव एक नोट है, और मुल्ताई ग्रेटेस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं. द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू इंश्योर द लेगेसी ऑफ सोशल जस्टिस बाय एजुकेशन एट द डोर स्टेप स्कीम. सो दिस वॉज अबाउट द एडिटोरियल दैट वॉज